चलो स्मिथ, निशांत, पलक, फोरम, मेघा. Pay attention. Let's revise a few things about depreciation. See, remember in the last lecture we discussed about depreciation, okay? New topic, depreciation. What was depreciation? What was depreciation? In simple terms, if we want to understand what is the meaning of depreciation, then how would you explain it? Simple meaning of depreciation, think. क्या होता है? Reduction in the value of asset. Reduction in the value of a fixed asset. बराबर है? So reduction in the value of a fixed asset. What are fixed assets? Assets which stay in the business for more than a year. more than a year. जो less than a year वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है? Current assets. Current asset, like your cash, like your debtors, like your stock, your bills receivable. These are all current assets. They stay in business for only 1 year. So they'll change the form within a year. So they are not bound to depreciation. होने ही वाला नहीं है उन पे depreciation, possible नहीं है. So only and only fixed assets depreciate. What are fixed assets? They stay for a long period of time. They are not for the purpose of resale. They are mainly to keep the business running for a long time, Start the business like furniture, land, building, equipments. Land doesn't depreciate. Normally, it appreciates, yeah, it remains constant. Otherwise, all man-made fixed assets depreciate, reduce in the value due to usage, due to wear and tear, due to passage of time, due to obsolescence of technology. कोई भी वजह से आपका फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, that is all amounting to depreciation. That is all nothing but depreciation, reduction in the value. Is that clear? So here depreciation, reduction in the value, what is it for the business? Is it a gain or a loss? What is that depreciation for the business? It's a loss. Obviously, it's a loss. It's an expenditure. What type of expense it is? Cash expense or a non-cash expense? Non-cash. Non-cash expense. You won't pay it to anyone, right? आप किसी और को जाके pay नहीं करने वाले हो. आपका asset value कम हो रहा है. That is what is depreciation. Is this clear? So it's a non-cash expense. It's a loss for the business. Why it is important to show depre in the books? Obviously, because it is one of the expenses. If you record all the incomes, all the expenses perfectly, only then you'll be able to calculate your profits or losses. Correct profit or losses, correct value of assets, ये सब आप तभी बता पाओगे जब आप correct depreciation charge करोगे. So depreciation, one of the expense, is a must to charge, to show your correct profit loss, to show the correct value of assets. Also, the replacement of asset becomes easier. When you show depreciation, you have a continuous value of the asset in front of your eyes. That decrease in the value, you have it in front of your eyes. So you'll come to know when to replace the asset. You'll come to know when to replace the asset if you're charging depreciation. That becomes easier. Then we also saw how to arrive at depreciation on any particular asset. अगर किसी asset का depre calculate करना है, amount ढूंढना है, तो आपको कौन सी चीजें पता होनी चाहिए? What 3 things you need to know in order to arrive at depreciation amount of any asset? Remember, what are the 3 things? Its original value. Yes, original value, that is called as what? इसका एक नाम दिया था original value का, historical cost. What is historical cost? Original cost plus all the expenses included at the time of purchase. Historical cost पता होना चाहिए, original value पता होना चाहिए, और Number of years it has been in business and scrap value. number of years and scrap value. ये 3 items अगर मैं आपको दे दूं, so you'll be able to calculate depreciation. याद आ रहा है कुछ? Last lecture we dealt with that.
ओरिजिनल कॉस्ट दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट. लाइफ, इज इट परफेक्ट लाइफ, एक्यूरेट लाइफ या एस्टिमेटेड लाइफ? Estimated. एस्टिमेटेड लाइफ. एस्टिमेटेड लाइफ मतलब अप्रॉक्स लाइफ. ओके, और कौन सा लाइफ है? इकोनॉमिक लाइफ, नॉट द फिजिकल लाइफ. फिजिकली तो चलता रहेगा एसेट आगे. दिस इज द इकोनॉमिक लाइफ. जितने टाइम तक आप एसेट यूज कर पाओगे वो आपका इकोनॉमिक लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ होता है. एंड एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एट द एंड ऑफ द लाइफ कितना पैसा उस एसेट से आप भंगार में रिसीव कर सकते हो, दैट इज द स्क्रैप वैल्यू. So take a simple example. Suppose the cost is 1 lakh, life is 10 years, and scrap value is 10,000. So can you tell me the amount to be depreciated per year? Depreciation per year. Per year कितना reduction होगा asset का? बड़ा ही simple सा logic है. 1 lakh का asset आपने लिया था, 10 साल life है, और 10 साल के end में आपको लगता है कि 10,000 वापस मिल जाएंगे. तो 10 साल के एंड में इफ यू विल गेट 10,000 बैक, मतलब वो तो कम हुए ही नहीं. 1 लाख का 10 तो मिल ही जाएगा आफ्टर 10 इयर्स. तो रेड्यूस कितने से हुआ वैल्यू एसेट का? एसेट का वैल्यू रेड्यूस हुआ बाय 90,000 रुपीज. डिड यू गेट दिस? आपने फर्नीचर खरीदा था 1 लाख का, 10 साल बाद आपको 10,000 तो मिल जाएंगे. तो रिडक्शन कितने से हुआ वैल्यू में? तो 90,000 का रिडक्शन हुआ है कि नहीं? वो 90,000 के रिडक्शन को कहा जाता है डेप्रीशिएबल वैल्यू. उसका नाम है डेप्रीशिएबल वैल्यू. 1 लाख माइनस 10,000, दिस इज कॉल्ड एज डेप्रीशिएबल वैल्यू. अब ये 1 लाख माइनस 10,000 को आप 10 से डिवाइड कर लो तो आपको मिल जाएगा एनुअल डेप्रीसिएशन ऑफ 9,000 रुपीज. Annual depreciation of 9,000 rupees. Remember this formula we discussed in the last lecture. Original cost minus scrap upon life. Original cost minus scrap upon life. कोई भी asset हो, कोई भी. आपको मशीन हो, एरोप्लेन हो, इक्विपमेंट हो, कंप्यूटर हो, बिल्डिंग हो, मोटर कार हो, वैन हो, डिलीवरी वैन हो. Any damn asset, if you know these 3 items, what are these 3 items? Original cost, the scrap value estimated at the end, and the life. Then you will be able to calculate the annual depreciation फटाक से. Logic क्या है depreciation का? Logic, how are you dividing this and why are you charging this? Simple सा logic है. कोई भी expense होता है उसकी life कितनी होती है? 1 year होती है कि नहीं? Any expense has got a life of 1 year, right? Yes or no? Now this furniture is having a life of 10 year. ये भी एक तरह का खर्चा ही है, इसको capital expenditure बोलते हैं. 1 year का life है कि 10 year का life है? Furniture का life. Furniture का life is 10 years. तो can I show 10 year का expense in 1 year? पूरा 1 लाख एक साल में दिखा सकता हूँ? Would that be right? No. मेरा मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? Whenever I want to calculate my profit or loss, I need to take 1 year का इनकम एंड 1 year का एक्सपेंस. तो डेप्रीसिएशन क्या है? हम वो 10 साल के एक्सपेंस को 1 ईयर में डिवाइड कर रहे हैं. सिंपल. 10 साल के एक्सपेंस को वी आर सिंपली डिवाइडिंग इनटू 1 ईयर एवरी ईयर. सो उतने से एसेट कम हो रहा है और वो खर्चे में जा रहे हैं एज योर एक्सपेंस. That is what is depreciation. Simple. What is the logic behind dividing that depreciation over the life? 10 साल का खर्चा एक साल में तो नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि एक साल का ही खर्चा दिखाना है. तो एक साल कितना यूज हुआ उतना खर्चा दिखाओ, तो उसी को डेप्रीसिएशन बोलते हैं. जो 1 ईयर यूज हुआ उसी को डेप्रीसिएशन बोलते हैं. और इस मेथड को क्या बोलते हैं ये भी हमने लर्न किया था, जहां पे एवरी ईयर the amount of depreciation is same. हर साल 9,9,9,9,9,000 से ही आप डेप्रिशिएट कर रहे हो. इस मेथड को क्या बोलते हैं? ये मेथड का एक नाम, 3 नाम मैंने डिस्कस किए थे. Fixed installment method. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, FIM, और Straight line method. स्ट्रेट लाइन मेथड एंड Original cost method. वेरी गुड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. याद आ रहा है? 3 methods
one method we discussed, three names of this method: straight line method, original cost method, fixed installation method. What is the peculiarity of this method? Every year the amount of depreciation will remain same. I want you all to see that example on page number 77. All of you see page number 77. Class notes ka page number 77. Page 77 of class notes. Please check. Page 77 of class notes. All of you got that? Read the example. ऊपर देखो, फर्स्ट लाइन पे दिया हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज परचेज ऑफ एन एसेट प्लस इंसिडेंटल चार्जेस. उसके बाद फॉर एग्जांपल, a machine costing 15,000 is purchased and installation charges of 3,000 are paid. 15,000 का मशीन खरीदा, 3,000 इंस्टॉलेशन पे किया. व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ मशीन? 18,000. 18,000. Estimated life of the asset is 10 years. And the scrap value is estimated rupees 2,000 at the end of its effective life. Effective life, economic life. ये तीन डेटा आपको चाहिए होते हैं कोई भी सम में. तो तीन डेटा आपको मिल गए. ओरिजिनल कॉस्ट पता है, लाइफ पता है, स्क्रैप पता है. कैन यू टेल मी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नाउ? इट इज व्हाट? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप divided by life. So what do you get? 15 plus 3, 18 is the cost. Minus scrap is 2,000, वो तो end में मिल जाएगा. The 16,000 से decrease हुआ है over the life, right? The 16,000 divided by 10, 1,600. PA is per annum. 1,600 rupees per annum से आप उसको depreciate करोगे. So how did we arrive at the amount of depreciation? All of you understood? इस मेथड को क्या नाम दिया गया है? What is this method called as? ये नाम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ठीक है. दिस मेथड वेर यू डिवाइड द डेप्रिसिएशन इक्वली, हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, इसको FIM बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. अब डेप्रिसिएशन का रेट, हाउ डू यू कैलकुलेट द रेट? ये भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर, याद है? परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन. व्हाट इज द फॉर्मूला? आपको बताया था 10th में आपके आए थे 540 मार्क्स आउट ऑफ 600. तो 540 डिवाइड बाय 600 into 100, दैट इज 90%. तो सेम वे यहाँ पर इन आवर एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे जो स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, यहाँ पे एनुअल डेप्रिसिएशन इज 9,000. व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट? सो 1 lakh. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है? 9,000 is the annual depreciation divided by 1 lakh into 100. That comes to how much? 9%. Is that clear? 9% is the total annual depreciation. All of you got that? तो वो जो बुक वाला एग्जांपल है उसमें अगर आपको रेट ढूंढना है तो कैसे करोगे? How will you calculate the rate? बुक वाले एग्जांपल में how will you calculate the rate? 1,600 is the annual depreciation divided by what? ओरिजिनल कॉस्ट. क्योंकि मेथड का नाम ही ओरिजिनल कॉस्ट है. वो रेट एवरी ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज करना है, तो ही आपको सेम आंसर मिलेगा. यहाँ पे दिख रहा है 9% ऑफ 1 lakh इज 9,000. अगेन 9% ऑफ 1 lakh, दैट इज 9,000. एवरी ईयर 99999. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट. आर यू गेटिंग दैट? वैसे ही वहां पर क्या होगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बुक वाले एग्जांपल में. हाउ विल यू कैलकुलेट द रेट? इट्स वेरी सिंपल. 1,600 is my annual depreciation. What is the original cost? What is the original cost of the asset? 18,000. 18,000. 15 plus 3, 18,000 into 100. 1,600 divided by 18,000 into 100, that comes to around 8.6 something percent आएगा शायद. 8.89. 8.89%. 8.89% is your depreciation. 8.89%.
तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, बात समझ आई? बड़ा ही सिंपल है, डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, दैट्स योर परसेंटेज. सो परसेंटेज कर लोगे तो अभी कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, हर साल फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है ना, सीधा कॉस्ट पे परसेंटेज अप्लाई करो एंड यू गेट द आंसर. So that is full year's depreciation. Got it? What if देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इस फर्नीचर वाले एग्जांपल में मेरे साल का डेप्रीसिएशन 9,000 रुपीज है, राइट? यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? एवरी ईयर फुल ईयर का डेप्रीसिएशन इज 9,000. अब मैंने वो मशीन समझो या वो फर्नीचर हाफ ईयर ही यूज किया है, आधा साल, 6 months, देन स्टिल वुड बी माई डेप्रीसिएशन 9,000 रुपीज for that year. Think about it. अगर मैंने वो एसेट खाली 6 महीना ही यूज किया है, मतलब इस साल में मैंने परचेज किया एंड आई हैव यूज्ड इट ओनली फॉर 6 months, not for full year. So still would my depreciation be 9,000 rupees? Yes. No. No. अरे मतलब अपना ईयर है अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च का फाइनेंशियल ईयर है और मैंने एसेट 1 अप्रैल को खरीदा तो मैं 31 मार्च तक यूज करूंगा, तो 12 महीना हुआ. लेकिन अगर मैंने वो एसेट 1 अक्टूबर को खरीदा, 1 अक्टूबर को परचेज किया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, this year I've used it only for 6 months, that way. So will my total depreciation be still 9,000 rupees? No, it will be half the It will value. be half of that, it will become 4,500. Are you getting that? If I have used the asset only for 3 months in the current year, then depreciation would become 1/4. 9,000 का 1/4. 9,000 है, no doubt, but 9,000 कब है? जब आप full year use कर रहे हो. Are you getting it? But if you are using for part of the year, then it will be obviously half or 1/4. Okay. So बोलने का मतलब 9,000 क्या है? दिस इज फॉर एनम, फुल ईयर का डेप्रीसिएशन. फुल ईयर का डेप्रीसिएशन वुड बी 9,000. बट इफ यू आर यूजिंग इट ओनली फॉर हाफ द ईयर, फॉर 1/4 ऑफ द ईयर, ओके, ऐसा नहीं होगा कि पहले साल हाफ ईयर यूज किया, फिर वापस 1/4 यूज किया, फिर वापस 1 ईयर यूज किया, फिर वापस हाफ यूज किया. ऐसे जंपिंग नहीं होने वाला है. ओके, दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर, ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर, क्योंकि एक बार एसेट यूज करने का चालू हो गया फिर उसका नो लुकिंग बैक. बात समझ में आ रही है? एक बार एसेट आपने यूज करने का स्टार्ट किया फिर उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक. फिर तो फुल ईयर यू विल हैव टू यूज, यू विल हैव टू डेप्रिशिएट बाय एफआईएम. फुल ईयर आपको चार्ज करना पड़ेगा. फिर आपने भले ही पूरे साल में 8 महीना ही क्यों ना यूज किया हो, 3-4 महीना बंद पड़ा हो एसेट, बट एक बार वो बॉक्स में से खुल गया, रेडी हो गया, देन इट विल बी ऑलवेज फॉर फुल ईयर. देन इट विल बी ऑलवेज फॉर फुल ईयर. ये प्रॉब्लम कब आएगी? हाफ ईयर की, जब आप परचेज करते हो. फॉर एग्जांपल आपने एयर कंडीशनर खरीदा है, आपने जनवरी में एयर कंडीशनर खरीदा, लेकिन विजय सेल से लेके आए और बॉक्स में ऐसे ही पड़ा हुआ था फॉर 3 months. आपने यूज करने का स्टार्ट किया फ्रॉम अप्रैल, तो डेप्रीसिएशन स्टार्ट कब से होगा? जनवरी से स्टार्ट होगा कि अप्रैल से स्टार्ट होगा? April. अप्रैल से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि तब तक तो वो बॉक्स में पड़ा हुआ था, वो विजय सेल के गोडाउन में बॉक्स में पड़ा हो कि आपके घर पे बॉक्स में पड़ा हो. डज इट मेक एनी डिफरेंस? नो, बॉक्स में तो ऐसे ही पड़ा हुआ है. एक बार आपने यूज करने का स्टार्ट किया, वहां से यू विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग द डेप्रीसिएशन, बोलने का मतलब. ओके, तो वो यूज करने की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर वो 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हो यूज करना तो फिर 12 महीने का लग जाएगा, बट अगर 1 अक्टूबर से कर रहे हो तो 6 महीने का लगेगा, क्योंकि करंट ईयर में यू हैव यूज्ड इट ओनली फॉर 6 months. इज दिस क्लियर? सो विल डू दैट इन द प्रॉब्लम. वापस आएगा. यहां तक समझ में आ रहा है? व्हाट इज डेप्रिसिएशन, रिडक्शन, व्हाई आर वी सपोज्ड टू चार्ज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफआईएम मेथड, एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू नो फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एंड ऑल. उसके बाद एक और एग्जांपल दिया हुआ है, देखो एक और एग्जांपल दिया हुआ है. For example, the original cost of the asset is 80,000 rupees. Can you all see that? And depreciation is charged at the rate of 10% per annum as per fixed installment method. Then the amount of depreciation will be computed as follows. ये एग्जांपल आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन इज व्हाट? 80,000 का 10% 8,000, 8,000 से कम हो जाएगा.
You get 72,000. Again, second year का depreciation will be still 8,000. Equal 80,000 का 10%. आपका value of asset हो जाएगा 64. 72 minus 8. Can you see that? Third year, again your depreciation would be 8. How did you get 8,000? 80,000 का 10%. Percentage दिया हुआ है. Directly applied on original cost. You get the answer. And the last again 8,000, and your value at the end of fourth year will be 48,000. So where is this example? 877, middle of the page. उधर ही है. पहला वाला example और second वाला example. Both the example I discussed अभी. Got it? How to go for FIM method? FIM method में amount of depreciation remains constant every year. Okay? तो आपको है ना प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स दे विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ डेप्री. आपका काम आसान करने के लिए वो लोग परसेंटेज दे देते हैं. मैंने आपको बता दिया कैसे ढूंढना है परसेंटेज, डेप्रीसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100 करके. बट इन द एक्चुअल सम्स व्हिच विल बी डूइंग वो लोग परसेंटेज दे देंगे. 10% FIM, 15% FIM, 20% FIM. तो आपको क्या करना है, सिंपली परसेंटेज को कॉस्ट पे अप्लाई करना है और आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा. गॉट इट? तो आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको शॉर्टकट बना के देंगे प्रॉब्लम. परसेंटेज देंगे, अप्लाई ऑन द कॉस्ट, यू विल अराइव एट द अमाउंट ऑफ डेप्री. करना क्या है सम में, उस पे जाते हैं. पेज नंबर 79 पे आ जाओ. पेज नंबर 79 पे यू आर सपोज टू डू द जर्नल एंड लेजर पार्ट. बुक कीपिंग में क्या करते हो आप, रिकॉर्ड करते हो ना ट्रांजैक्शंस. तो आपको ये जर्नल और लेजर एंट्रीज रिकॉर्ड करना है. कौन से वाले, आपको पेज नंबर 79 पे दिए हुए हैं. ये सब एंट्रीज आपको आएंगे डेप्रिसिएशन के चैप्टर में. ओके, सब एंट्रीज आपने सीखा हुआ है, अभी खाली उसको रिवाइज करना है. जर्नल के वक्त ही हमने किया हुआ है. देखो, इन द ईयर ऑफ परचेज मतलब जिस साल आपने एसेट खरीदा. फॉर परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, यू नो व्हाट इज द एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश. देखो मत, आंसर मत देखो. What is the entry for purchase of asset for cash? Asset to Asset to cash. Asset to cash. अब देखो उधर, purchase of asset for cash, asset to cash मिला. Then purchase of asset on credit. What is the entry for buying an asset on credit? Asset to creditor. Asset to creditor. देखे बिना समझ में आ रहा है. Asset आया, creditor is the giver. Asset to creditor. For other incidental expenses incurred when the asset is put to operation. इसका मतलब समझ में आया. एसेट को यूज करने तक का सब खर्चा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, फिक्सेशन चार्जेस, वो सब क्या करते हो आप, एसेट में ऐड कर देते हो. तो एंट्री क्या होगी उसकी भी, Asset to एसेट टू कैश. एसेट टू कैश. पहला 3 एंट्रीज क्लियर सबको. पहले एसेट खरीदा, कैश पे खरीदा तो कैश, क्रेडिट पे खरीदा तो क्रेडिट, इंसिडेंटल हुआ तो भी एसेट अकाउंट डेबिट. देन फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन. अब डेप्रीसिएशन कौन से दिन पे चार्ज करना है, फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर. व्हाट डू यू थिंक, व्हेन डू End of the year. एंड. हमेशा 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 पूरा जिंदगी में याद रखना, कोई भी एसेट, कोई भी बिजनेस में कोई भी फिक्स्ड एसेट का डेप्रीसिएशन का एंट्री विल ऑलवेज बी पास्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. इसलिए जब आप जर्नल कर रहे थे तब ये एंट्री घड़ी घड़ी नहीं आ रही थी. परचेज सेल घड़ी घड़ी आ रहा था, मालूम है. परचेज घड़ी घड़ी आ रहा था, सेल घड़ी घड़ी आ रहा था, रेंट घड़ी घड़ी, एक्सपेंस घड़ी घड़ी, इनकम घड़ी घड़ी. डेप्री नहीं आ रहा था घड़ी घड़ी, क्योंकि डेप्री एक ही बार चार्ज होता है लास्ट डे. जितने एसेट है सब पे एक साथ. What is the journal entry for depreciation? We discussed that also. depreciation to asset. Asset. Depreciation to asset. It's a non-cash expense. Expense बढ़ा and asset कम हुआ. So reduce the asset, so credit that. So depreciation to asset account. Is that clear? So depreciation to asset. And the last entry, balance of depreciation is transferred to profit and loss account. कुछ क्लिक हो रहा है, ये हमने डिस्कस किया था लेजर अकाउंट को क्लोज करते वक्त. Remember, how do you close down the accounts? Asset, liability, income, expense. 12 महीने तक प्रोसेस इज सेम. फिर 12वें महीने के एंड में all expense and all incomes, do they get carried forward to the next year or they get closed and get transferred to P&L account?
Closed and transferred to. क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू पीएनएल। याद आ रहा है? लेजर का 12 महीने के एंड का प्रोसेस बताया था मैंने, लेजर कंप्लीट कर अभी कैश बुक सब्सिडरी जब हमने कंप्लीट किया था तभी हमने डिस्कस किया था ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त। तो जितने एक्सपेंस, अभी डेप्री भी एक एक्सपेंस ही है ना, तो 12 महीने तक तो कैरी फॉरवर्ड होगा अगर बीच में चार्ज किया तो। 12वें महीने के एंड में, 12th मंथ के एंड में, विल योर डेप्रिसिएशन बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर? नो, इट विल गेट ट्रांसफर टू विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसकी ट्रांसफर एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैन यू सी दैट? प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बंद हुआ, क्रेडिट किया, नलिफाई किया एंड चला गया पीएनएल में। ये फाइनल अकाउंट्स में वापस आएगा। फाइनल अकाउंट में हम लोग पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तभी ऑल द एक्सपेंसेस वी विल ट्रांसफर एंड ऑल द इनकम्स विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पूरा सब एक जगह पे दिखाएंगे। ये बात समझ में आई सबको, प्रॉफिट एंड लॉस वाली? अच्छा, विल योर एसेट अकाउंट बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर अकाउंट एट द ईयर एंड? Machinery account, furniture account, building account, motor car account, will they get transferred to profit and loss account at the year end? No. No, because they are not expense, they are assets. Assets and liability do not get transferred to any account at the end of the year. They get carried forward. वो next year में चलते रहते हैं क्योंकि उनका benefit अभी भी मिलना या देना बाकी है। Is this clear? Expense और income क्यों ट्रांसफर हो जाते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ खत्म। Expense और income की लाइफ कितनी होती है? एक्सपेंस और इनकम की लाइफ कितनी? 1 year. डेप्रिसिएशन की लाइफ कितनी होगी? 1 ईयर। इस साल का डेप्री खत्म, चला गया पीएनएल में। नेक्स्ट ईयर वापस न्यू डेप्रिसिएशन, 1 साल का, वापस वो भी चला जाएगा पीएनएल में। थर्ड ईयर वापस न्यू डेप्रिसिएशन, वो भी चला जाएगा पीएनएल। 1-1 साल की लाइफ वाला होता है डेप्रिसिएशन। इज दिस क्लियर? उसके बाद सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, मुझे बात बताओ, सेकेंड ईयर में अगेन विल यू बाय द एसेट? यू हैव ऑलरेडी बॉट इट ना इन द फर्स्ट ईयर। तो सेकेंड ईयर में परचेज की एंट्री आएगी, एसेट परचेज की एंट्री नहीं आएगी। अगर एसेट परचेज की नहीं है तो इंस्टॉलेशन की भी एंट्री नहीं आएगी। तो कौन सी एंट्री आएगी? डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन? अगेन डेप्रिसिएशन टू एसेट। कैन यू सी दैट एट द एंड ऑफ द ईयर? हेलो? एंड व्हेन डू यू ट्रांसफर दैट डेप्रिसिएशन? At the end of the year, when the year is over, where do you transfer the depreciation? To profit and loss account. So again, profit and loss to depreciation. दिख रहा है? तो फर्स्ट ईयर में आपका एसेट परचेज का एंट्री आता है, सेकेंड ईयर में वापस एसेट परचेज की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सभी सालों में खाली 2 ही एंट्री आएंगी। एक डेप्रिसिएशन चार्ज करो और पीएनएल में ट्रांसफर करो, डेप्रिसिएशन चार्ज करो, पीएनएल में ट्रांसफर करो, डेप्रिसिएशन चार्ज करो, पीएनएल में ट्रांसफर करो, डेप्रिसिएशन। आर यू गेटिंग द सीक्वेंस? अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने वो एसेट बेच दिया, पूरा लाइफ खत्म होने से पहले ही वो एसेट बेच दिया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, लॉस हो गया, या आपको नया एसेट खरीदना है, वॉट एवर मे बी द रीजन, आपने वो एसेट बेच दिया। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे देखो, आपका फर्नीचर आपने लाया 1 लाख रुपीस का, ये ओरिजिनल कॉस्ट था, ओरिजिनल कॉस्ट, ओके। इस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है 10,000 रुपीज पर ईयर, 10% है 10,000, स्क्रैप वैल्यू नील है, स्क्रैप इज नील, नील मतलब 0 रुपीज, एंड में कुछ नहीं मिलेगा। So what's your and your life is 10 years. So what's your annual depreciation to 10,000? 1 lakh minus 0 upon 10, 10,000. और परसेंटेज क्या मिलेगा? तो 10%, 10,000 upon 1 lakh into 100 is 10%. तो year 1 आपने फुल यूज किया, डेप्रिशिएट किया 10,000 से, 1 lakh minus 10 gives you what? 90,000. सेकेंड ईयर पूरा यूज किया, डेप्रिशिएट किया 10,000 से, आपका वैल्यू हो गया एसेट का 80,000, इसको बोलते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, या फिर बुक वैल्यू, इसको बुक वैल्यू बोलते हैं, बुक वैल्यू या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू, 90, 80 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन वापस चार्ज किया 10,000, आपका एसेट कितने का हो गया अभी? 70,000, ये आपका बुक वैल्यू या WDV। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है आपको?
3 साल आपने यूज किया, अब आपको लगता है कि मार्केट में बहुत अच्छा वर्जन आ गया इस एसेट का, आई नीड टू सेल ऑफ दिस एसेट एंड बाय दैट न्यू वन, एंड बाय दैट न्यू वन। सो आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी स्टॉप कर सकते हो, यस और नो। तो आपको अभी ये एसेट यहाँ पे बेचना है, तो आप गए मार्केट में, आपने पूछा इस एसेट को बेचूंगा तो कितना आएगा, तो मार्केट में पता चला कि 65,000 आएगा। इस एसेट को बेचने जाओगे तो यू विल गेट 65,000 रुपीज। ओके, सो थिंक अबाउट इट, व्हाट हैपेंस व्हेन यू सेल द एसेट, व्हाट हैपेंस व्हेन यू सेल द एसेट। ये 70 का एसेट है कि ये 1 लाख का है? अभी एसेट कितने का हो गया? 70. 70, और 70 का आपने 65 में बेचा, तो क्या होगा? 5,000 का लॉस. 5,000 का लॉस होगा। आप याद है ये जर्नल में करते थे, एसेट ऑफ 70,000 सोल्ड फॉर 60,000, मशीन ऑफ 10,000 सोल्ड फॉर 8,000, याद आ रहा है? तो वैसे ही ये एसेट आपने 70 का 65 में बेचा है, तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर दैट? एसेट ऑफ 70 सोल्ड फॉर 65,000, Cash account debit, Cash loss loss account on debit sale to of machinery asset. account. लॉस ऑन एसेट, लॉस ऑन Furniture सेल ऑफ account. एसेट टू एसेट, दैट इज फर्नीचर, बराबर है? तो बेसिकली कैश लॉस ऑन फर्नीचर टू फर्नीचर 65, 5 and 70,000. So this is the entry you are supposed to pass at the time of sale. Simple. So third year, during the year of sale, can you see that? For depreciation charged up to the sale date, up to the sale of asset, मतलब अगर ये साल में एसेट यूज किया होता तो, ये साल में मैंने तो समझो फर्स्ट दिन पे बेच दिया तो कोई डेप्रिसिएशन किया नहीं। अगर मैंने 6 महीना यूज करके फिर सेल किया होता तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन करता। दैट इज द फर्स्ट वन ओवर देयर। वो दिख रहा है, फर्स्ट एंट्री में कुछ नहीं है, डेप्री चार्ज करना है, वो सम के साथ मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे वो एंट्री नहीं आएगी क्योंकि मैं फर्स्ट डेट पे सेल कर रहा हूँ। आई एम सेलिंग द एसेट ऑन द वेरी फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर विदाउट यूजिंग। 3 साल यूज किया, फिर फर्स्ट डेट पे बेच दिया। फिर सेल ऑफ एसेट एट इट्स बुक वैल्यू, नेक्स्ट एंट्री, सेल ऑफ एसेट एट इट्स बुक वैल्यू, मतलब 65 का 65 में सेल किया। व्हाट एंट्री यू पास फॉर 65 का 65 में सेल किया? नो प्रॉफिट नो लॉस, तो कैश बैंक टू एसेट हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। आर यू गेटिंग दैट? 65 का 70 का 65 में बेचा, 70 का 65 में बेचा, 70 का 65 में बेचा, तो क्या होगा? लॉस होगा। तो दिख रहा है वहां पे लॉस का, सेल ऑफ एसेट एट लॉस, फिफ्थ पॉइंट पे दिया हुआ है, फिफ्थ पॉइंट पे सेल ऑफ एसेट एट लॉस, बैंक लॉस ऑन एसेट टू एसेट मिला। यही प्रॉफिट में बेचा, 70 का 80 में बेचा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 70 का 80 में बेचा तो प्रॉफिट होगा। व्हाट इज द एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट एट प्रॉफिट? दिस आल्सो यू हैव डन, कैश टू एसेट टू प्रॉफिट, राइट? Can you see that entry number 3? Entry number 3, cash to asset to profit, cash to asset to profit. Got that? तो लास्ट ईयर जब आप बेचने वाले हो तब पहला तो डेप्री चार्ज करना, वो हम लोग करेंगे प्रॉब्लम के साथ, जितना यूज किया उसका। उसके बाद सेल की एंट्री कर दो, बैंक टू एसेट टू प्रॉफिट या बैंक लॉस टू एसेट, खत्म। और फिर जो बचा हुआ है एंट्री देखो, ट्रांसफरिंग प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फोर्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री और एट्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री और एट्थ एंट्री। कैन यू सी दैट? फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट, 4, 6 एंड 8, ये तीनों ट्रांसफर एंट्री है फॉर दोज एक्सपेंस एंड इनकम। जैसे हमने डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया, उसका एंट्री क्या था? P&L टू डेप्रिसिएशन। वैसे ही लॉस ऑन सेल भी एक तरह का लॉस है, एक्सपेंस है, उसको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर एंड पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस। और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट तुम्हारा इनकम है, तो प्रॉफिट का ट्रांसफर एंट्री उल्टा हो जाता है, याद है हमने किया था लेजर में, टू बैलेंस कैरिड डाउन के जगह टू P&L, तो प्रॉफिट टू P&L, एंट्री विल बी प्रॉफिट टू P&L। दिख रहा है? 3, 4, 6 एंड 8, ऑल दीज 3 आर ट्रांसफर एंट्री। तो प्रॉफिट का ट्रांसफर एंट्री क्या होगा? तो प्रॉफिट टू P&L। लॉस का ट्रांसफर एंट्री क्या होगा? P&L टू लॉस। डेप्री का ट्रांसफर एंट्री क्या होगा? P&L टू डेप्री। रेंट का ट्रांसफर एंट्री क्या होता है? P&L टू रेंट। सैलरी का ट्रांसफर एंट्री क्या होता है? P&L टू सैलरी।
आपको ऑर्डर समझ में आ रहा है एक्सपेंस और इनकम का? एक्सपेंस है तो P&L टू एक्सपेंस, इनकम है तो इनकम टू P&L। समझ में आ रहा है? तो एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, लॉस इज एन एक्सपेंस, तो आपका ट्रांसफर एंट्री क्या होगा? P&L टू डेप्रिसिएशन एंड P&L टू लॉस। प्रॉफिट का ट्रांसफर एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट टू P&L, बस प्रॉफिट इज योर गेन। इज दिस क्लियर? But in Yep. the end of the last year, since we have already charged depreciation, why are we charging depreciation again at the start during the same? For the sale year का you are asking? Year of sale you are asking, right? Yes. That first entry. हाँ, तो that first entry में है ना, suppose I'll give you another example. यही example ले लो, ये मैंने 3 साल asset use किया, ठीक है? तो 10, 10, 10 I have charged depreciation. Now in the 4th year, suppose my year was from Jan to December, Jan to December. So Jan to December, Jan to December, Jan to December, 3 साल I've used the asset. In the 4th year, I did not sell the asset on 1st January. 1st January को sell नहीं किया. Suppose I sold it on 1st of July. In the 4th year, I sold it on 1st of July. So that means in the 4th year, I've used that asset for the 6 months period, right? January, February, March, April, May, June. So for those 6 months, वो asset use हुआ है, मतलब और depreciate हुआ होगा for the time span of 6 months. So we have to record that also. हाँ, तो that depreciation मतलब ये 70,000 जो था, ये था on 1st January, लेकिन मैंने तो बेचा है 1st जुलाई को, तो और depreciation for 6 months that will become 5,000, क्योंकि full year का 10 है ना, तो 6 months का 5 होगा, तो ये कितना आता है? 65. ये आपका वैल्यू हुआ on 1st July, and then you sell and then you record that sale का part. So that is that first entry which is given on page 79 नीचे, sale का time पे first entry, record depreciation. So this depreciation will be recorded in the middle of the year. It is an exception. Otherwise all depreciations are recorded at the end of the year. But this sale का depreciation is recorded in the middle of the year whenever you sell that asset. Got it? If at all you Yeah. sell it in the middle, then yeah. समझा? So that's why if you sell it in the middle, then you need to first start depre and then go for your sale का entry. Got it? तो वो आपको सम के साथ पता चलेगा, डेट वाइज सब दिया होगा ट्रांजैक्शन में. स्ट्रक्चर समझ आया? क्या करना है आपको? जर्नल एंट्रीज करना है और लेजर अकाउंट्स बनाना है. हाउ मेनी लेजर अकाउंट्स यू नीड टू मेक? सो जस्ट 2 लेजर अकाउंट्स. ओके, 2 लेजर अकाउंट्स, नॉट ऑल, ओनली 2. विच 2 लेजर अकाउंट्स? एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन. कौन से 2 अकाउंट बनाने हैं? एसेट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट. ओके, बट पेक्युलरिटी क्या है? जर्नल देख के आपको ध्यान में आया होगा, आर वी गोइंग टू डू जर्नल एंड लेजर ऑफ जस्ट 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर? मोर देन 1 ईयर. अब तक हम लोग जर्नल लेजर 1 ही साल का कर रहे थे, अभी हम लोग 2-3 साल का बनाएंगे. ओके, सो 2-3 इयर्स का जर्नल एंड 2-3 इयर्स का लेजर अकाउंट्स. सम्स आर वेरी इजी. आपको एक बार नैक आ गया, एंट्रीज का ऑर्डर समझ में आ गया, 1-2 सम करोगे, यू विल बी एबल टू डू ऑल द सम्स ऑन योर ओन. It is all repetitive process. Very simple chapter. खाली कंसेप्ट समझना जरूरी है. डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे होता है, इक्वली डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट फॉलो होता है. ओके, और बेसिक जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज समझा सबको? कौन सा एंट्रीज आता है? फटाफट बोल दो मेरे को. परचेज ऑफ एसेट का एंट्री क्या होगा? Asset to cash. एसेट टू कैश. क्रेडिट पे खरीदा तो क्या होगा? Asset to Asset credit. to to क्रेडिट. debtor. डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री क्या होगा? Depreciation to Depreciation to asset. डेप्रिसिएशन टू एसेट. ओके, और डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर करने का एंट्री क्या होगा? P&L to P&L to depreciation. P&L to depreciation. depreciation. बराबर है, यही एंट्री इंपॉर्टेंट है. फिर जब बेचा तो एसेट को सेल करने की एंट्री क्या होगी? अगर लॉस पे बेचा तो कैश Loss on लॉस sale टू to asset. एसेट, और अगर प्रॉफिट पे बेचा तो Cash to कैश asset टू to एसेट टू प्रॉफिट. ये बेसिक एंट्री समझ में आ गया? ये बेसिक एंट्रीज ही ध्यान में रखना है, यही घूम फिर के आएगा हर एक सम में. ओके,
बाकी इंडिविजुअल ट्रांसफर एंड ऑल विल डू इट अलोंग विद द सम डेट, कितना चार्ज करना है ये भी मैं बताता हूँ. अब प्रॉब्लम में आपको दो चीजें पूछी जा सकती हैं, जर्नल एंट्रीज या लेजर अकाउंट. अगर जर्नल आता है तो लेजर कर सकते हो, 2/2/2 करना है आपको, बराबर है. लेकिन ये चैप्टर की खासियत है. क्या खासियत है? इस चैप्टर में जर्नल ज्यादा नहीं पूछते, लेजर ही पूछेंगे आप. सो 95% ऑफ द प्रॉब्लम दे विल आस्क यू ओनली लेजर अकाउंट, जर्नल नहीं, खाली लेजर. ओके, तो आपको जर्नल एंट्री दिमाग में फ्रेम करनी है जो अभी आपने लर्न की, और उसको डायरेक्टली लेजर में पोस्ट करना है. क्योंकि जर्नल लिखते बैठोगे तो इट विल बी ऑल वेस्ट ऑफ टाइम. जर्नल लिखते बैठोगे ना और फिर लेजर बनाओगे तो हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, उतना टाइम मिलने वाला नहीं है. तो अभी हम लोग ऐसा हैबिट करेंगे, जर्नल दिमाग में फ्रेम करेंगे और लेजर में पोस्ट करेंगे डायरेक्टली. ओके, ओनली 2 अकाउंट्स, मशीन अकाउंट एंड एसेट अकाउंट. लुक एट सम नंबर 1. फर्स्ट सम कर रहे हैं हम लोग अभी स्टार्ट. फर्स्ट सम, पेज नंबर 81. There are two methods of depreciation. First one is FIM. We are doing the first method, fixed installment method. Okay. तो पहले हम लोग पूरा FIM का प्रॉब्लम अच्छे से समझ लेंगे, फिर RBM पे जाएंगे, diminishing balance method, the second method. Can you leave us a little early, like 8:50 or something? You have to go to NM. आज क्यों? Document submission. Eligibility for Which eligibility? it's for all the non-SSC students. अच्छा हाँ, वो ICSE और IGCSE. Okay. हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई लीव यू. हाँ तुम्हारा मैसेज आया था वीर. फर्स्ट या But what if we purchase an asset, we do not use it for 2-3 years, and then we sell it again? So no depreciation will be included. provided that you have not used it at all. Okay, now the catch about that, depreciation not only depends on usage, it also depends on passage of time. So it may happen that you have bought an air conditioner for 50,000. It's in the box for 2 years, not used at all, petty pack, and then you want to sell it. So it might happen that market में उसका price 40,000 हो गया होगा अभी, क्योंकि नया वेरिएंट्स आ गया. तो वो 10,000 आपका डेप्रिसिएशन लगने ही वाला है. For 50,000 का 40,000 The 10,000 will be loss for depreciation. that will be depreciation. Loss का मतलब sudden decrease. मतलब मार्केट में भाव 40 हो गया है, तो आपका 50 का एसेट 40 हो गया, दैट इज डेप्रिसिएशन. अब आप वो 40 का एसेट बेचने गए, आपको लग रहा था मार्केट में प्राइस 40 है, लेकिन दुकानदार ने बोला नहीं, इसका मैं 35 ही दूंगा आपको. दूसरा शॉप वाले ने बोला मैं आपको 37 दूंगा, तो आपने बोला चलो 37 में सेल कर देते, उससे कोई ऊपर देने को रेडी नहीं है. तो फिर वो 37 आपका फाइनल सेल वैल्यू, दैट इज अ सडन डिक्रीज, सडन फॉल इन द वैल्यू, दैट इज लॉस. 40 का 37, दैट इज लॉस. गॉट इट? दैट सडन फॉल और सडन राइज, दैट इज प्रॉफिट और लॉस. जो ग्रेजुअली कम हुआ है ओवर द स्पैन, दैट इज डेप्रिसिएशन. अंडरस्टूड? Now you come to the first question, page number 81. Messrs. Raj and Sons purchased a machinery on 1st October 2007 at 90,000 rupees. Okay, and spent 10,000 on its installation. So can you tell me what is the total value of machine? 1 lakh. 1 lakh. The firm provides depreciation at the rate of 10% under straight line method. What is straight line method? Fixed installment method. हर साल सेम 10%. अच्छा, इसमें कहीं स्क्रैप वैल्यू दिया है आपको? You have been given any scrap value of the asset? Then what will you assume about scrap value? कुछ नहीं दिया मतलब? Nil. 0 rupees. So 1 लाख का एसेट है, 10% से डेप्रिशिएट करना है, तो हर साल कितने से डेप्रिशिएट करना है उसको? 10,000 से. तो हर साल 10 करते जाओगे, तो लाइफ कितना हुआ एसेट का? कैन यू टेल मी द लाइफ? 10 years. Life is 10 years. All of you got that? 10,000 10 साल तक करोगे तो 0 हो जाएगा वैल्यू एसेट का.
And year ends on 31st March every year. Show machinery account and depreciation account for the year 7, 8, 8, 9 and 9, 10. How many years का account they have asked? 3 years. 3 years. तो 10 साल का मत बना देना. 10 साल का पूछने वाला भी नहीं है. A normal depreciation sum will be asking you to make accounts for only 2 to 3 years या max to max 4 years. Generally 3 साल ही आता है. 3 years का account they ask. Okay? 3 years का account. So let's draw. How to draw? Ledger का format याद है आपको? Ledger का format. Date particular JF amount, date particular JF amount. Okay? So in the books of, on top you have to write, एक ही side पे आ जाएगा ये. In the books of Raj and Sons, this is machinery account. In the books of Raj and Sons, this is machinery account. Okay? और इसको ड्रॉ करना है आपको 3/4 of the side पे, 3/4. 75% पेज पे ये अकाउंट आएगा. बड़ा होगा लेंथ में 75%. 75% of the side will be for machinery account. And नीचे का जो 25% है, छोटा सा पार्ट, उधर आपको ड्रॉ करना है डेप्रीसिएशन अकाउंट. उधर आपको ड्रॉ करना है डेप्रीसिएशन अकाउंट. सेम फॉर्मेट है, लेजर फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF amount, date, particulars, JF amount. सी एकदम ध्यान से भी. Page number 81, first sum, Raj and Sons, machinery account and depreciation account, 3/4 and 1/4. 3/4 and 1/4. 3/4 and 1/4. जजमेंट ले लो, एकदम कट टू कट होना जरूरी नहीं है. मशीनरी बड़ा, डेप्री छोटा. 3/4 and 1/4. किया? Three-fourth and 1/4. Now, this chapter will have many working notes. Okay, so working note for calculation आपको दिखाने हैं घड़ी घड़ी. Start with the first working note. Working note number 1. ये आपका दूसरे साइड पे जाएगा, सेकेंड साइड. Working note number 1. You always mention the year ending and method. Year ending and method. What is the year ending? Is it 31st December or 31st March? What is the financial year ending? Look in the problem. 31st March. 31st March. कभी 31st December भी हो सकता है. कुछ नहीं दिया तो 31st March लेके चलना है. मतलब अपना year, financial year is from April to March. Financial year is from April to March. Okay. And method. What is the method given to you? Read. Second line पे दिया हुआ है. It is 10% straight line method. 10% straight line method मतलब FIM method, fixed installment method, straight line method, original cost method. It is all one and the same. Straight line is FIM. So mention the method, mention the year end,
Now let's start. Messrs. Raj and Sons purchased the machinery on 1st October 2007 at 90,000 and spent 10,000 on installation. So what's the total value of machine? 1 lakh. 1 lakh. What will be the entry for buying the machine? Machinery to cash. Machine. Machinery to cash. Okay, so how will you post it? Machinery में to cash, cash में Buy machine. buy machine. तो machinery में to cash, तो go to machine account. This is my machine account. Date क्या है? 1st October 2007. मशीनरी में टू कैश की जगह ऐसे लिखना, टू कैश स्लैश बैंक. कुछ नहीं पता है तो कैश स्लैश बैंक. ओके, मशीनरी टू कैश स्लैश बैंक. चेक दिया है तो बैंक, कैश दिया तो कैश, कुछ नहीं मालूम है कैश है कि चेक है तो कैश स्लैश बैंक लिख दो. ओके, ये डेप्री चैप्टर में ऐसे ही फॉलो होता है, फॉर्मेट है उसका. इसके लिए एवरीवन कॉलेज आल्सो फॉलोज दैट. तो कैश स्लैश बैंक यू कैन राइट. सो टू कैश स्लैश बैंक कितना लिखोगे तो 1 लाख रुपीस. 1 लाख रुपीस. 90 plus 10, 1 lakh. When did you buy this machine? On 1st October 2007. Okay. Did you buy any other machine in this year or any other purchase entry will come? Just one machine we are having. Now directly you go date wise. अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, 7-8. ओके, फर्स्ट ईयर 7-8. नॉर्मली लेजर कैसे बनता है तो मंथली बेसिस पे बनता है. एवरी मंथ यू पोस्ट बैलेंस, एवरी मंथ यू पोस्ट देन बैलेंस, देन बैलेंस बैलेंस बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड, पोस्टिंग बैलेंस, पोस्टिंग बैलेंस, पोस्टिंग बैलेंस, राइट. बट दिस इज नॉट अ मंथली लेजर, दिस इज अ ईयरली लेजर. तो इधर मंथली मंथली बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. सीधा 12 मंथ के एंड में बैलेंस करो और नेक्स्ट ईयर में जाओ. बात समझ आई? मंथली बैलेंस नहीं कर रहे हम लोग, ईयर का समरी बता रहे, पूरे ईयर का. तो पूरे ईयर का अकाउंट साथ में बनाओ, बैलेंस करो. ईयर का साथ में बनाओ, बैलेंस करो. बनाओगे मंथली के जैसे ही, लेकिन मंथली नहीं बनाओगे, ईयरली बनाओ. ठीक है. तो 1st October 07 को आपने परचेज किया था, फिर कुछ नहीं था 6 महीने तक, बैलेंस बैलेंस बैलेंस. फिर ईयर एंड हुआ. ईयर एंड कब आएगा? व्हेन विल दिस ईयर एंड? 31st March 2008. 31st March 2008. Is this clear? 1st October 07 वाला साल है, मतलब 7-8 का ईयर हुआ ना ये. 7-8 year is 7-8, April to March. You bought it on 1st October, so your financial year ends on 31st March, correct? So what are we supposed to do on that date? Year ending का डेट पे क्या करना है अपने को? Depreciate. डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. Goes without saying, क्योंकि चैप्टर ही है वो, करना ही पड़ेगा डेप्रिसिएशन चार्ज. एसेट यूज किया है आपने. व्हाट इज अ जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन? Depreciation to asset. Depreciation to machine in this case. How will you post it? Depreciation to machine. Depreciation में to machine Two machine. और machine में By by depreciation. So depreciation account में जाओ और लिख दो उधर to machine, और मशीन में जाओ और लिख दो by depreciation. कब करोगे ये डेप्रिसिएशन चार्ज? मैंने बताया था, याद है? डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन विच डेट? एंड ऑफ द ईयर, लास्ट डेट, दैट इज 31st March 08. 31st March 08. अब लेट्स कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. 5,000. डेप्रिसिएशन अमाउंट देखते हैं. यस, करेक्ट है. What will be your amount of depreciation? Tell me, 10,000 or 5,000 or something? 5,000 because the asset was purchased in October, so 6 months are there. So you Exactly. You bought this asset on 1st of October, right? And when is your year ending? 31st of March. So सबके पास उंगलियां हैं, all of you have fingers. Okay, count. You bought it on 1st October, right? So October, November, December, January, February, March. How many months did you use this asset for in the current year? 6 months. 6 months. कैसा आया 6 months? समझ में आया? If I नहीं समझा, 1st October, October, November, December,
January, February, March, 6 months, right? अगर मैंने ये एसेट 1st April को परचेज किया होता तो कितना डेप्रिसिएशन I would have charged? 10,000. Then full 10,000, 12 months. But I have not used only this for 12 months, right? Did you get it? I have not used it for 12 months. I have used it only for 6 months. तो खाली 6 महीने का एक्सपेंस दिखाओ. मैचिंग कंसेप्ट. 6 महीना एसेट यूज किया तो इनकम भी 6 महीने की आई होगी, तो एक्सपेंस भी 6 महीने का दिखाओ. फिर नेक्स्ट ईयर पूरा यूज करोगे फुल ईयर, तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन करो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ओनली 6 मंथ्स का डेप्री. तो हाउ विल यू शो दैट? यू नो दैट पीएनआर वाला फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इनटू रेट, वही वैसे ही करना है. देखो, वैल्यू ऑफ मशीन इज व्हाट? 1 लाख का 10% फॉर 6 months, 6 by 12. 1 lakh into 10 upon 100 into 6 upon 12. Okay. So ये 0 0 cut, 0 0 cut, divide by 2, 2 ones are 2 5s are. So this is 5,000 rupees. 5,000 rupees is your depreciation. Not 10,000. Why not 10,000? Did you get it? Because you have used it only for 6 months. लिया ही 1st October को. अब अमाउंट लिख दो इधर. डेप्रीसिएशन में 2 मशीन 5,000 और मशीन में बाय डेप्रीसिएशन 5,000. हो गया ये 5,500. Sir, I had a question. Yeah. In such problems, will they ask like 7 months difference or something, or only 3, 6, 9? Multiples of 3, 6, 9, 12. Easier for calculation. Okay. Some case मैंने डाला हुआ एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए. You may get 5 months or 2 months or 7 months, but very rare. Otherwise, it will be 3, 6, 9, 12 का multiple. Okay. So depreciation हुआ 5,000. अभी first year is over, right? 7, 8 is over. तो 7, 8 में बंद करने का एसेट और अकाउंट डेप्रिसिएशन दोनों को बंद करना है. तो पहले लेट्स क्लोज डाउन द एसेट अकाउंट. बैलेंस करते हो ना ईयर एंड, जैसे मंथली बैलेंस करते हो वैसे ईयरली बैलेंस करना है. तो विल यू ट्रांसफर द एसेट अकाउंट टू एनी अदर अकाउंट और विल यू कैरी इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर? व्हाट विल यू डू? विल यू क्लोज डाउन एसेट अकाउंट? खत्म हो गया एसेट कि विल यू कैरी इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर? कैरी फॉरवर्ड. लॉन्ग टर्म एसेट है ना, एक्सपेंस नहीं है, वो एसेट है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना है. जैसे नॉर्मल बैलेंस करते हो, ये टोटल 1 लाख माइनस 5, 95,000. क्या लिखना है इधर? बाय बैलेंस CD on 31st March 08, and it will become on 1408 to balance BD, 95,000 on 1408 after 1 day, next accounting year. Got that? Next, depreciation account भी बंद करना है. तो tell me, in depreciation account, will you have balance? Will you write by balance carried down? You will just write by profit and loss account. By profit and loss account. Why? Because depreciation is an expense, and all expense and all incomes, do they get carried forward to the next accounting period? No. They get transferred to your P&L account. What is the journal entry for transferring depreciation? अभी हमने journal में देखा, you remember? What is the journal entry for transferring depreciation? Profit and loss account debit to depreciation. Profit and loss to depreciation, right? Profit and loss to depreciation. Check कर लो पीछे, पेज नंबर 79 पे था, 3rd, 4th, 5th एंट्री, पेज 79 5th एंट्री. डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन. तो हाउ डू यू पोस्ट इट? पीएनएल अकाउंट में 2 डेप्री. पीएनएल अकाउंट अभी नहीं, फाइनल अकाउंट में बनाएंगे. पीएनएल अकाउंट में 2 डेप्री. तो डेप्री में क्या आएगा? बाय पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज ऑन 31st March 08. एक साल खत्म होने पर एवरी एक्सपेंस एंड एवरी इनकम गेट ट्रांसफर टू पीएनएल. बैलेंस नहीं होता है. 12 महीने तक बैलेंस होगा, 12वें महीने के एंड में पीएनएल.
और मशीन 12वें महीने के बाद भी बैलेंस, ओके, वो खत्म नहीं हुआ, वो चल रहा है अभी भी, फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलना बाकी है। क्लियर विद द फर्स्ट ईयर एंट्रीज ऑल ऑफ यू? क्या किया हमने? परचेज किया, डेप्रिशिएट किया, बैलेंस किया एसेट को और डेप्रिसिएशन को डाल दिया पीएनएल। So can we show the working note again? सीधा वर्किंग नोट 1 लाख का 10% फॉर 6 months, 1 लाख का 10% फॉर 6 months. Let's go to second year. How many years का account they have asked us to make? 3. 3 years. So we are in the second year. Second year में will you have any purchase entry again? No. So we jump to the last date. What is the last date of second year? Think and tell me. 31st March 2009. 31st March 2009. 9. क्योंकि 7-8 हो गया है, अभी 8-9, तो अप्रैल 2008 से 31st March 2009. All of you with me? So 31st March 2009 क्या करना है लास्ट डेट पे आपको? Depreciation. डेप्रिसिएशन, Depreciation. डायरेक्ट डेप्रिसिएशन यूज किया है तो डेप्रिशिएट करो. तो ऑन 31st March 09, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन टू Machinery में Machine. by depreciation. डेप्रिसिएशन में टू मशीनरी, मशीनरी में बाय डेप्रिसिएशन. सिंपल. डेट होगा 31st March 09. ओके. अब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट नंबर 3. लेट्स कैलकुलेट दैट. डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 0809. 0809 का डेप्रिसिएशन. विच मेथड आर वी डूइंग? FIM, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, ओरिजिनल कॉस्ट, SLM कर रहे हो तो हर बार परसेंटेज किस पे लेना है? ओरिजिनल कॉस्ट पे. What is the original cost? 1 lakh. Every year you will charge it on original cost 1 lakh. 1 lakh pay 10%. For how many months now? पहले साल में तो 6 months किया था. सेकेंड ईयर में कितना यूज हुआ है ऐसे? Can you tell Full me? year. Full year? 10,000 will be the depreciation. Are you getting that? Why full year? Or should I take again 6 months? Think. In the second year, that is in the year 8-9, we have used this asset for how many months? Come on. 12 months. 12 months. April to March. उंगलियां हैं. April, May, June, July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. 12 months, right? So how many months का depreciation should I charge? How many months का expense should I record? 12 months. 12 months. For 12 months. Now on it will be 12, 12, 12, 12, 12 only every year. Till the time your asset is sold. Whenever you sell that asset, उससे पहले तक अभी हर साल पूरा 12 महीना ही होने वाला है. अली पहले ईयर में ये प्रॉब्लम था क्योंकि आप कहीं बीच में भी खरीद सकते हो एसेट. Got it? Now it will be always 12 months. So into 12 by 12. 1 lakh का 10% into 12 by 12. So ये 0, 0 cut, 0, 0 cut, 12, 12 cut. You are left with 10,000. 10,000 is the amount of depreciation. All of you got that? बस रिकॉर्ड करो उसको. 10,000 टू मशीनरी और इधर बाय डेप्रिसिएशन. खत्म हो गया आपका सेकेंड ईयर. अब क्या करना है? सेकेंड ईयर खत्म हुआ तो उसके एंड में क्या करना है आपको? बैलेंस करना है. तो मशीन में क्या लिखोगे? 95,000 is the total. Debit side is greater. 95,000 minus 10 is what? 85,000. क्या लिखोगे? तो बाय बैलेंस CD on 31st March 09 and on 1409 एक दिन बाद it will become to balance BD 85 debit minus credit debit balance. मशीन में कैरी फॉरवर्ड होगा. मशीन will not get transferred to any other account. But what about depreciation? Will you carry forward depreciation to next year or will you transfer it to profit and loss account? क्या करना है? Transfer to profit and loss. Transfer to profit and loss account. So by profit and
loss account, that will be 10,000. फुल बैलेंस नहीं लिखना है, बैलेंस के जगह P&L लिखना है, बैलेंस के जगह P&L, क्योंकि दिस अकाउंट इज क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू P&L फॉर द सेकेंड ईयर. This account is closed and transferred to P&L for the second year. This account is closed and transferred to P&L for the second year. Is this clear? Got it? Third year. Third year क्या करना है अभी आराम से बोलो. Will you have any purchase entry? सेल वेल तो कुछ किया नहीं है, सीधा जाओ लास्ट डेट पे. What will be the last date of third year? What will be the last? 31st March 2010. 31st March 2010. फर्स्ट ईयर क्या था 7-8, सेकेंड ईयर था 8-9, थर्ड ईयर है 9-10. तो 9-10 का एंडिंग होगा 31st March 2010. क्या करना है इस दिन पे? सीधा बैलेंस कर दूं? By depreciation. डेप्रीसिएशन. ओके, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि हर साल डेप्री चार्ज करो, डेप्री चार्ज करो. समझना है, एसेट है, यूज किया है तो डेप्रीशिएट हुआ ही है, तो डेप्री चार्ज करो. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर डेप्री? व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर डेप्री? डेप्री टू Depreciate asset. एसेट. तो डेप्री में टू मशीनरी अकाउंट और मशीनरी में बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट. मशीनरी में बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट. ठीक है, डेप्री में टू मशीन, मशीन में बाय डेप्रीसिएशन. For every year, do we have to show the working note? No need. Now once you have got ना that 10,000, now that only I was going to tell you. वापस वो 10,000 का बनाने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि now also you have used it for hello. How many months in the third year? 12 months. 12 months. First year only it was 6 months because you bought it in the middle of the year. Second year you have used it for full year. Third year you have used it for full year, April to March, April to March. Fourth year full year, April to March. Fifth year full year. So what will be the amount of depreciation for the third year? 10,000. 10,000. 1 lakh का 10% for 12 months. Same note. यही नोट आएगा. 0809 का जो किया 9-10 में भी सेम आएगा. Are you getting that? 0809 या 0910 एक ही डेप्रीसिएशन है 10,000. रिकॉर्ड करो उसको. सो बाय डेप्रीसिएशन टू मशीनरी डेट इज 31st March 10 एंड देन यू बैलेंस इट आउट. बैलेंस करो इसको. तो दिस इज 85,000 minus 10,000 will give you 75,000, and this is by balance carried down 31st March 10. It will become 1 4 10 code 2 balance BD 75. And what about depreciation? Will you carry it forward as balance? Will you carry it forward as balance? No. You will transfer it to which account? Hello. Profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस. साल के एंड में ढूंढते हो ना प्रॉफिट लॉस. तो 3 साल का P&L, 3 साल का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए you transfer the depreciation to P&L. So 10,000 you will transfer. 10,000 you will transfer to P&L account. Is that clear? That's your sum. This is your sum. Basic sum. बेटा दिमाग में क्या किया? खाली फर्स्ट ईयर परचेज, फिर डेप्री, फिर ट्रांसफर, डेप्री ट्रांसफर, डेप्री ट्रांसफर, डेप्री ट्रांसफर. डेट्स का ध्यान रखना. इधर स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन डेट्स. सो डेट्स का बराबर से केयरफुल रहना. योर डेट पहला 7-8 है. इट विल स्टार्ट ऑन 1st April 7 एंड ऑन 31st March 08. 8-9. So 1st April 08 to 31st March 9 and 9-10. 1st April 9 to 31st March 10. Got it? ध्यान से कर लो. NM people कौन कौन है? You have to go to college. Want to leave अभी? Yes, so we have to catch that metro because college में NM people can leave. और बाकी लोग सेकेंड सम में बता रहा हूँ, वो ले लो अभी.
Bye, sir. हाँ तुम Bye, लोग कर sir. लेना बाद में. Okay, bye. recording. So, Bye, sir. Recording अभी तक का करो. Second part I'll send. okay. हाँ, someone I'll tell to record now.